سیلاب کی تباہی سے دوچار ہونے والوں کی بحالی اور تعمیر نو کا مشن وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطحی وفد کے ہمراہ موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات پر منعقد ہونے والی عالمی ڈونر کانفرنس میں شرکت کے لیے جنیوا روانہ ہو گئے۔ شہباز شریف 9 جنوری کو اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے ساتھ مل کر پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی میں شراکت کے موضوع پر بین الاقوامی کانفرنس کی میزبانی کریں گے۔ وزیر اعظم آفس کے مطابق کانفرنس کے دوران پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی اور تعمیر نو کا فریم ورک پیش کیا جائے گا اور اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بین الاقوامی تعاون اور طویل المدتی شراکت داری کی اہمیت پر زور دیا جائے گا۔ کانفرنس میں مختلف ممالک کے وزراء، اعلیٰ سطحی نمائندے، بین الاقوامی مالیاتی اداروں، فاؤنڈیشنز، فنڈز کے ساتھ ساتھ بین الاقوامی ترقیاتی تنظیموں، نجی شعبے، سول سوسائٹی اور INGOز کے نمائندے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل مشترکہ پریس ٹیک آؤٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے دورے کے دوران مختلف سربراہان مملکت سے ملاقاتیں بھی کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری، وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار، وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان اور وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب وزیر اعظم کے ہمراہ ہیں۔ کانفرنس میں دنیا بھر سے مختلف ممالک کے سربراہان شریک ہوں گے۔ جنیوا کانفرنس سے پاکستان کی توقعات وابستہ ہیں۔ وطن عزیز کو سیلاب زدہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے $16 بلین امداد درکار ہے۔ تباہ کن سیلاب سے 1700 افراد جاں بحق اور 80 لاکھ سے زائد بے گھر ہوئے۔ یہ سب ماحولیاتی تبدیلیوں کے مضر اثرات تھے۔ متاثرین کی بڑی تعداد اب بھی بے گھر ہے۔ تعمیر نو کے لیے رقم کہاں سے آئے گی یہ ابھی تک واضح نہیں، کیونکہ سیلاب سے ہونے والی تباہی کے بعد ہنگامی فنڈنگ کا انتظام کرنے میں بھی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اقوام متحدہ کے ڈیٹے کے مطابق درکار فنڈ کا آدھا ہی جمع ہو سکا تھا۔ پاکستان اور اقوام متحدہ پیر کو سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی میں شراکت کے موضوع پر اہم کانفرنس کی میزبانی کر رہے ہیں، جس کا مقصد گزشتہ سال کے تباہ کن سیلابوں کے بعد ملک کی تعمیر نو اور بحالی کے لیے امداد کا انتظام ہے۔ کانفرنس اس بات کا بھی امتحان ہے کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے ہونے والی تباہی کے بعد تعمیر نو کے لیے رقم کون دے گا۔ سیلابی پانی تو تقریباً اتر گیا، لیکن تعمیر نو کا کام، جس کا تخمینہ $16.3 ارب لگایا گیا ہے، کا آغاز ہونے والا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل پاکستان کی تعمیر نو اور بحالی میں شراکت کے موضوع پر ہونے والی اس بین الاقوامی کانفرنس کے میزبان ہیں۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے زر مبادلہ ذخائر زیادہ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 نہیں 10 ارب ڈالر ہیں۔ اسحاق ڈار نے ایک بیان میں کہا کہ پاکستان کے واجب الادا قرض وقت پر واپس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر بہت جلد دوبارہ مستحکم ہوں گے۔ کمرشل بینکوں کے پاس موجود 6 ارب ڈالر بھی پاکستان کے ہیں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے، جس کی کرپشن پر دنیا بھر میں کتابیں لکھی گئیں۔ ان کی پارٹنرشپ لگی تو پاکستان پھر پیچھے چلا گیا۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کنونشن سے خطاب، کہا اس سارے کچھ کا ذمہ دار ایک شخص ہے۔ مہنگائی کے طوفان نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا۔ پاکستان آج فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے، ہر طرف مسائل ہیں۔ سابق وزیر اعظم کا کراچی میں پارٹی کے خواتین کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ پاکستان کی تاریخ کا آج سب سے بڑا کرائسس ہے۔ کبھی بھی ایسا کرائسس نہیں آیا جو آج ہے، جس کی پیشن گوئی آج سے میں نے 7 مہینے پہلے کر دی تھی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا 90 کی دہائی کے بعد پاکستان زوال کا شکار ہوا، بحران مزید بڑھے گا، ہم مقابلہ کریں گے۔ 20 سال یہی دو خاندان ایک دوسرے کو چور چور کہتے رہے، ہم نے تو اس بحران کی 7 ماہ پہلے نشاندہی کر دی تھی۔ ہندوستان 90 کی دہائی میں پہلے ہمارے سے آگے نکلا، 90 کی دہائی سے پہلے ہمیشہ پاکستان آگے تھا، ہمیشہ ہم ہندوستان سے آگے تھے۔ بر صغیر میں سارے اکنامک انڈیکیٹرز کہتے تھے ہم آگے ہیں۔ ڈاکٹر عشرت حسین نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے۔ لیکن 90 کی دہائی جب ان دونوں کی پارٹنرشپ لگی، تب سے پاکستان پیچھے رہ گیا اور بنگلہ دیش بھی آگے نکل گیا۔ عمران خان نے کہا PDM کی ساری ترقی اشتہاروں اور پروپیگنڈے میں ہوتی ہے، صاف و شفاف الیکشن سے ہی شفاف حکومت بنے۔ پاکستان کو دلدل سے نکالنے کے لیے مضبوط حکومت چاہیے۔ اتنا بڑا آج کرائسس کے اندر ہم پڑ گئے اور یہ مزید بگڑے گا، ہم اس کا مقابلہ کر لیں گے۔ اور واحد آپ کی جماعت ہے، یہ یاد رکھیں، آج اگر قوم کسی کی طرف دیکھ رہی ہے وہ آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، کیونکہ یہ سب ایک طرف ہو گئے ہیں۔ ساری جماعتیں جو 30 سال سے، اور خاص طور پہ یہ 2 بڑی جماعتیں جو اقتدار میں بیٹھی رہی ہیں، یہ سب ایک طرف ہو گئی اور
इस वक्त कौम को सिवाय आपकी जमात के कोई और नहीं नजर आ रहा जो पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से अब निकालेगा। इमरान खान ने कहा, कौम हमारे साथ है और हम तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान को मुश्किल वक्त से कैसे निकालना है, सियासी इंजीनियरिंग ना की गई तो तब ही मुल्क में शफाफ इंतखाबात होंगे। मशीर उमूर कश्मीर कमर ज़मान कायरा का मौजूदा दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ने का बरमला एतराफ़। हमारे दौरे हुकूमत में महंगाई बढ़ी, देखना होगा महंगाई का जिम्मेदार कौन है। इस हुकूमत ने ऐसे फैसले किए जिससे महंगाई हुई, साथ ही महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को भी ठहरा दिया। कहा, इमरान खान के दौर पर महंगाई उरूज पर थी। इमरान खान ने मुल्क को आलमी सतह पर तनहा किया। वो इदारों के खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर हम इमरान खान से हुकूमत ना लेते तो मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता। आज अगर मुल्क के हालात मुश्किल है तो हम तो कभी नहीं कहते कि मुल्क के हालात अच्छे हैं। मैं तो हर फोरम पे खड़े होकर कहता हूं कि हम महंगाई खत्म करने आए थे या कम करने आए थे। हमारे दौर में महंगाई बढ़ गई है, लोग तंग हो गए, ये बात दुरुस्त है। तेल महंगा हुआ है, आटा महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, गैस महंगी हुई है। क्यों ना कहे, ऐसा हुआ है, लेकिन देखना यह है कि इसका जिम्मेदार कौन है। क्या हमारे दौर में कोई ऐसे फैसले हुए हैं जिसकी बदौलत ये महंगाई आई है? और जो सबसे बड़ा महंगाई का जिम्मेदार है, जो सबसे बड़ा स्टाकिया है, वो भी कह रहा है महंगाई बड़ी हो गई है। जो खुद महंगाई करता है प्यो भी ये कही जा रहे हैं। हमें सब कुछ सोचना होगा, हमें ऐसे इन हुकूमतों को भी पूछना होगा। अब महंगाई नहीं, ठुकाई मार्च हो सकता है। सियासी पंडित शेख रशीद ने इत्तेहादी हुकूमत को तनबीह करते ट्वीट में लिखा, 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने के लिए रोड मैप का भी मुतालबा कर दिया। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार करते हुए कहा कि अब महंगाई की जगह ठुकाई मार्च हो सकता है। 2 वक्त की रोटी के लिए पहली शहादत मीरपुर खास में हो गई है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट पर लिखा कि ज़र मुबादला के ज़खायर 4 से 5 अरब डॉलर रह गए, जो 20 रोज से कम का इम्पोर्ट है। 76 रुकनी काबीना एक आटे का थैला नहीं दे सकी। कुछ दिनों में इलेक्शन शेड्यूल देना होगा, वरना तबाही ही तबाही है। शेख रशीद ने मजीद कहा, हुकूमत से 9 माह की तबाही और डिफॉल्ट से बचने का रोड मैप भी मांग लिया है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, हुक्मरानों ने पाकिस्तान को दुनिया में तमाशा बना दिया। पाकिस्तान में हर 5वां शहरी डिप्रेशन का शिकार है। इसहाक डार ने डॉलर की कीमत कम करने का दावा किया था, लेकिन डॉलर को पर लग गए। हिरोशिमा तबाह हो गया, दोबारा आबाद हो गया, लेकिन ये जो 3 एटम बम हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं इस वक्त, एक का नाम शहबाज शरीफ, एक का नाम जरदारी और इसका नाम इमरान, ये 3 आदमी ट्राई का पाकिस्तान के लिए एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। हमारी तबाही, हमारी बर्बादी इनकी वजह से है। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। बिखरी MQM पाकिस्तान जुड़ने लगी। फारूक सत्तार का खालिद मकबूल सिद्दीकी की हिमायत का ऐलान। कहते हैं, मुतनाज़े हल्का बंदियां भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। बू आ रही है कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी ने मुहाजिरों के खिलाफ मुआहिदा कर लिया है। कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के धड़ों के इत्तेहाद में खालिद मकबूल सिद्दीकी को बड़ी कामयाबी मिल गई। कन्वीनियर MQM ने फारूक सत्तार को राम कर लिया। नाराज रहनुमा दोबारा मुत्तहिदा में शामिल हो गए। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी फारूक सत्तार को एहतजाज में शिरकत की दावत देने उनके घर पहुंचे, जहां खालिद मकबूल सिद्दीकी ने फारूक सत्तार को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज और मुत्तहिदा में वापसी की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। जो प्री पोल रिगिंग कर चुके हैं और आइंदा वो समझते हैं कि धांधली करने के उनके पास वसाइल भी हैं, इख्तियार भी है, ताकत भी है। हर एक को कराची, हैदराबाद में, सिंध के शहरी इलाकों में इलेक्शन में कामयाब होने का मुकम्मल हक है। सिंध के शहरी इलाकों की हकीकी नुमाइंदगी को खत्म करना चाहेंगे तो ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होगा। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि इलेक्शन कमीशन ने मुहाजिर इलाकों में मुतनाज़ा हल्का बंदियां बनाई। कराची में प्री पोल रिगिंग शुरू की जा चुकी है, किसी को इलेक्शन छीनने नहीं देंगे। सिंध के शहरों में रहने वाले बिलखुसूस महाजिरों और दीगर मजलूमों की आवाज़ बनते रहे हैं। उनके जुमला मसाइल को हल करने के लिए हमने एक भरपूर जद्दोजहद की है।
फारूक सत्तार का कहना था कि माजी में शहरी इलाकों के हकूक के लिए भरपूर आवाज उठाई। मुतनाज़ा हल्का बंदियां भाई को भाई से लड़ाने की साजिश है। MQM पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करता हूँ। MQM पाकिस्तान मुतनाज़ा हल्का बंदियों के मामले पर इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस के सामने एहतजाज 11 जनवरी को करेगी। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। सूबाई वजीर सईद गनी कहते हैं इस बार मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। मेयर के लिए उम्मीदवार कौन होगा इसका फैसला क़यादत करेगी। पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन के ज़ेर एहतमाम बिलावल हाउस चौरंगी से स्टार गेट तक रैली निकाली गई, जिसमें मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों पर रहनुमाओं, कारकुनान और बल्दियाती उम्मीदवारों ने शिरकत की। इस मौके पर सूबाई वजीर सईद गनी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात में कामयाबी हासिल करेगी। इस बार कराची का मेयर पीपल्स पार्टी से होगा। रैली के शुरका से पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो और वकार मेहदी ने भी खिताब किया। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं। साजिशें अब भी हो रही हैं। जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का रैली के शुरका से खिताब। कहा शहर कराची अब नए दौर में दाखिल हो गया है। कराची पूरे पाकिस्तान और मुल्क की मईशत को चला रहा है, मगर कराची का कोई वारिस नहीं। लाशें उठाओगे, 2 करोड़ 20 लाख जवान हैं, सबको नहीं मारा जा सकता, सबको बाहर नहीं भेजा जा सकता, सबको समंदर में नहीं फेंका जा सकता। हमें रहना भी यहाँ है, पढ़ना भी यहाँ है, आगे बढ़ना भी यहाँ है और इंशाअल्लाह हमें इस हक से अब कोई महरूम नहीं करेगा। इसलिए अगर पढ़ना है, आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है, मुस्तकबिल को रोशन करना है, तो फिर 15 तारीख के इंतखाब को आप ये समझ कर वोट डालें कि नए दौर का हम आगाज करने जा रहे हैं। एक मर्तबा मुंतखब मेयर इस शहर में आ जाए, इंशाअल्लाह नक्शा तब्दील होगा। बल्ले के डर से इकट्ठे होने वालों का एक साथ शिकार करेंगे। ये लोग मिल जाएं तो अच्छा है, शिकार करने में आसानी है। PTI के मरकजी रहनुमा असद उमर सफ बंद नजर आए। बंद कमरों के फैसले अवाम को कबूल नहीं, पाकिस्तान के फैसले सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी अवाम करेंगे। तो कुछ भी कर लें, पाकिस्तान के अवाम फैसला कर बैठे हैं कि इस मुल्क के फैसले होंगे तो वो पाकिस्तान के अवाम करेंगे। किसी बंद कमरे के फैसले पाकिस्तान के अवाम को कबूल नहीं है। आजकल बल्ले के खौफ से साथ उन्होंने मिलना शुरू कर दिया है। 0 जमा 0 0 ही रहता है। ये लोग मिल जाएं साथ तो अच्छा है, 3 का अलग शिकार करने के बजाय एक साथ ही शिकार करेंगे। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, साथ रहिएगा। लीगी रहनुमा राना मशहूद का पंजाब में कप्तान की नंबर गेम पूरी ना होने का दावा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान के खिलाफ पार्टी में भी नफरत मौजूद है। इन्हें पता है कि नंबर पूरे नहीं हैं, इसीलिए वोट नहीं ले रहे। ये शख्स वो है जिसने नौजवानों को इखलाकी पस्ती में धकेल दिया। इसने मुल्क में बदतमीजी को परवान चढ़ाया। इन्होंने बिल्कुल सरासर इनकार किया। वो इसलिए किया कि इनके पास नंबर गेम पूरी नहीं है, इनके लोग इनसे नाराज हैं। तो ये एक ऐसा दरिंदा है जिसने कुछ नहीं छोड़ा। इसकी पार्टी में इसके खिलाफ नफरत मौजूद है। इनको पता है कि ये वोट नहीं ले सकते, इसलिए वोट से भाग रहे हैं। मुल्क भर में आटा बहरान ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया है। आए दिन आटे की कीमतें बढ़ने से शहरी परेशान हाल हैं। चक्की वालों की भी मनमानियां जारी, मुनाफाखोरों ने दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया। महंगाई की चक्की में पिसते आवाम पर महंगाई का कड़ा वार। महंगाई करते आवाम अब हुए आटे के लिए ख्वार। मुल्क भर में आटा सोने के भाव बिकने लगा। गरीब आवाम को अब 2 वक्त की रोटी की भी फिक्र सताने लगी। गंदम और आटा महंगा होते ही मुनाफाखोरों की बराई। देखते ही देखते महंगाई का तूफान खड़ा कर दिया। शहर इक़्तिदार में फी किलो आटा 160 रुपए तो लाहौर में 150 रुपए पर बिकने लगा। पिशावर, कोयटा और कराची समेत बड़े छोटे शहरों में भी आटे के निर्ख हाथ से निकल गए। चक्की वालों ने भला कहाँ पीछे रहना था, वो भी बहती गंगा में हाथ धोने लगे। चक्की का देसी आटा भी फी किलो 160 रुपए पर मिलने लगा है। 40 किलो चक्की आटे का रेट 6400 रुपए मुकर्रर कर दी गई। सबके चेहरों पर लिखा एक ही सवाल, अब आवाम क्या 2 वक्त की रोटी भी ना खाए?
महंगाई, आटा भी नायाब हो गया। शहरी आटे के हुसूल के लिए दर बदर होने लगे। घंटों के सब्र आजमा इंतजार के बाद भी आटा है कि मिलता ही नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी आटा कहाँ है कि बाज़गश सुनाई देने लगी है। महंगा ही मिले तो सही। सोने के भाव, बिकते आटे के नायाब होने पर आवाम की पुकार। शहर शहर लगी मुट्ठी भर आटे के हसूल के लिए लंबी कतार। आवाम दिन भर हुए ख्वार मगर सब बेकार। किसी का काम न आया इंतजार। बारी आने पर हुआ आटा देने से इनकार। अरबाबे इख्तियार सस्ता आटे के पॉइंट बनाकर बरी अल्जमा हो गए मगर सेल पॉइंट का क्या करना जब आटा तो है ही नहीं। दिन भर की ख्वारी मगर फिर भी न आई बारी। बेशतर शहरी खाली हाथ ही घरों को लौटने पर हुए मजबूर। दुकानदारों ने भी आंखें माथे पर रख ली। अव्वल तो आटा देने से पहले दिखाए नखरे हजार मगर दुगना रेट पर देने को तैयार। बस आवाम ही के मुकद्दर में लिख दिया गया होना दर बदर और खार। मगर सबका है एक ही सवाल, आखिर इस सब का कौन है जिम्मेदार। हुकूमत की जानिब से सस्ता आटा सप्लाई स्कीम में शहरियों की तजलील की जाने लगी। मर्द और खवातीन की आटा खरीदने के लिए तवील कतारों में घंटों इंतजार की अजियत सहने पर मजबूर हैं। हुकूमत सप्लाई में 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए में दस्तयाब है, जबकि आम दुकानों पर यही 10 किलो आटा 1600 रुपए तक फिरोख्त हो रहा है। तफसीलात खुरम मलिक की इस रिपोर्ट में। गंदम की पैदावार में खुद कफील कहलाए जाने वाले मुल्क पाकिस्तान में आटा नायाब होने लगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के शहरी भी आटे के हसूल के लिए जलीलो ख्वार होने लगे। आम दुकानों पर आटे के मनमाने रेट वसूल किए जाने लगे, जबकि हुकूमती आटा सप्लाई में शहरी लंबी लंबी कतारों में घंटों इंतजार की अजियत बर्दाश्त करने पर मजबूर हैं। हुकूमत की जानिब से आटा सप्लाई के लिए शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ मुकामात पर मजमूई तौर पर 47 सप्लाई पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां पर हुकूमती नर्ख 648 रुपए में 10 किलो आटे का थैला तो दस्तयाब है, लेकिन सप्लाई पॉइंट्स पर शहरियों का जम्मे गफीर और लंबी लंबी कतारें बन जाने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मर्दों ख्वातीन की बड़ी बड़ी लाइनों में उम्र रसीदा अफराद भी खड़े हुए आटा खरीदने पर मजबूर हैं। ये बात है कि वाकई बहुत लंबी लाइन लगी हुई यहाँ की। हम तो सुबह से आए लेकिन मिल नहीं रहा कि कहीं भी नहीं मिल रहा। बस ये कि सालन के ऊपर हाथ याद करें कि लोगों के ऊपर बहुत मुसीबत में आए लोग। काफ़ी लोग कोई बच्चे लेके आए, कोई काम छोड़ के आ गए। सारी बात है दुकानों पे अगर लेने जाए तो वो कहते हैं हमें आप 750 रुपये हमें देंगे तो हम आपको दे देंगे। यहाँ पे हम सुबह 6 बजे से हम यहाँ पे खड़े हुए हैं। गाड़ियों वाले कहते हैं आप जो है ना टाइम की हिफाजत करें। खातून बच्चे सारे यहाँ लाइनों पे खड़े हैं, लोगों पे ऊपर से वो आटा भी नहीं दे रहे, बदमाशी भी कर रहे लोगों पे। वफाकी दारुल हुकूमत की आम मार्केटों की दुकानों पर आटा महंगे और मनमाने नरखों पर फरोख्त किया जा रहा है, जहां फी 10 किलो आटे का थैला 1600 रुपए तक पहुंच चुका है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत आम मार्केटों में भी आटे के नरखों को कंट्रोल करने की हिकमत अमली बनाए ताकि शहरियों को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अरशद सत्ती के साथ खुरम मलिक, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेशावर में रोटी की कीमत सुनकर शहरी दिल थामने लगे हैं। आटे की कीमतों में हालिया इजाफे के बाद नान बाइयों ने भी रोटी की कीमत में 10 रुपए का इजाफा कर दिया। पेशावर में रोटी की कीमत हाथ जलाने लगी। छोटी सी रोटी की भी कीमत बढ़ गई। नानबाइयों की मनमानियों ने शहरियों को 2 वक्त की रोटी से भी महरूम कर दिया, जिसके बाद 170 ग्राम की रोटी 30 रुपए में फरोख्त होने लगी। कीमत क्यों बढ़ाई? नानबाइयों ने अपना ही रोना रो दिया। कहते हैं कीमत इसलिए बढ़ाई कि गंदम और आटा दोनों ही हुए महंगे। अगर आटा महंगा मिलेगा तो भला रोटी कैसे सस्ती देंगे? जिला इंतजामिया की दूसरी जानिब एक ही तान है कि रोटी की कीमत 20 रुपए है। नानबाइयों ने इसकी कीमत में अज खुद इजाफा कर रखा है। किसकी सुने और किसकी करें अनसुनी। जितने मुंह इतनी बातें, मगर आवाम को घाटा ही घाटा। हर तरफ एक ही पुकार, आटा 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 आटा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में। हमारे साथ रहिए।